Hello students, this is 1.51. A rotating disk moves in the positive direction of x-axis. Find the equation yx, it means trajectory of the path, describing the position of the instantaneous axis of rotation. If at the initial moment the axis C of the disk was located at the point O, after which it moved, and there are two problems, with a constant velocity v, while the disk started rotating counterclockwise with a constant angular acceleration beta, initial angular velocity is 0, and the second part is with a constant acceleration a and the 0 initial velocity while the disk rotates counterclockwise with a constant angular velocity. So how we have to deal with the problem? Consider the case. This is the disk, and it is given that at starting moment the axis C of the disk was located at the point O. It means at a start the C axis coincides with the point on the diagram. आपको बताना है कि इसका y-x रिलेशन क्या है, जबकि हम जानते हैं कि विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ये ट्रेवल कर रही है एंड डिस्क स्टार्टेड रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा. सो कंसीडर कि t सेकंड तक ट्रेवल करने के बाद अगर हम ये जानने की कोशिश करें इस एक्सिस को बेसिक एक्सिस मान करके, अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करके ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि टी टाइम के बाद इस डिस्क की पोजीशन क्या थी, तो टी टाइम बाद हमें मिलेगा डिस्क अपनी एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी और ये क्लियर है कि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इट्स अ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v. So definitely this much distance x will be equal to v into t because it is moving with constant velocity. So this much distance will be x equal to v into t. This distance from O point to C point will be x, and this x will be equal to v naught t. It is v into t because it is moving with constant velocity. Disk is rotating and moving also. Its center of mass is moving forward and disk is rotating. So our rotating disk move in the positive x direction of x-axis. Find the equation yx describing the position of instantaneous axis of rotation. If at the initial moment the axis C of the disk was located at the point O, after which it moved with constant velocity v, while the disk start rotating counterclockwise with a constant angular acceleration beta, and initial angular velocity is 0. So consider t टाइम में इस डिस्क ने जो डिस्टेंस x-axis के अलोंग ट्रेवल किया होगा वो डिस्टेंस x इक्वल टू vt से गिवन होगी, और इतनी देर में इतने टाइम में एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा के साथ काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हुए जो एंगुलर वेलोसिटी डिस्क ने एक्वायर कर ली होगी वो होगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी ओमेगा डैश इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विच इज 0 प्लस बीटा टी. सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम. And we know that the angular velocity of every point of a rotating body will be same. So omega dash equal to beta t will be the angular velocity for all particles of this body. So ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे को ट्रेवल कर रहा है, तो इस बॉडी का हर पार्टिकल v स्पीड से आगे को ट्रेवल कर रहा है. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v x एक्सिस के अलोंग हर पार्टिकल की. तो हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. इट इज गिवन दैट फाइंड द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो क्लियरली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वही पॉइंट हो सकता है जिस पॉइंट की रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से देखने पर 0 दिखाई दे. सो डेफिनेटली अगर ये डिस्क काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही है तो ठीक इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, सपोज y डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट का r omega means in this problem this r omega will be y omega and omega is omega dash given. So एक पॉइंट इस एक्सिस के जस्ट ऊपर ऐसा होगा जिसका y omega dash बैकवर्ड होगा, इट इज v इक्वल टू r omega. ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है कि इसी एक्सिस पे इस पॉइंट को एग्जिस्ट करना चाहिए, वो भी अपर डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने फिर बताऊं एक बार कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस द पॉइंट व्हिच इज एट रेस्ट ऑन सीन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम. ग्राउंड फ्रेम पर देखने पर इस बॉडी के किसी भी पार्टिकल की एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v है बिकॉज़ इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड सिंस बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा, due to which after t time it will gain a velocity beta t.
तो ये वेलोसिटी एंगुलर बॉडी के हर पार्टिकल की है। सो बॉडी अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इस एक्स एक्सिस के जस्ट ऊपर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस y पर एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट का वी वाई ओमेगा डैश बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर हम ये कंडीशन मेंटेन कर पाए कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से 0 हो जाए, तो द केस है कि इस पार्टिकल को हम रेस्ट में कंसीडर कर पाएंगे। यानी इस पार्टिकल को रेस्ट में कंसीडर करने के लिए ये हमारी नीड है ग्राउंड फ्रेम से कि इसकी वेलोसिटी v और इस पार्टिकल का बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलने वाली वेलोसिटी y ओमेगा डैश सेम। इट मींस फॉर finding the position of instantaneous axis of rotation we have to select a point in the body which is at rest on seeing from ground frame. So v should be equal to y omega dash and omega dash is beta t, so v is equal to y into beta t. So velocity of body center of mass should be equal to y beta t. And what is t? T is x by v. So put the value of t, we will get v equal to y beta x by v. So v will be y beta x by v and v square will be equal to beta into xy. So this will be the equation of that trajectory in terms of v and beta. हमने केवल ये कंसीडर करने की कोशिश की, एक बात बिल्कुल क्लियर समझे, इस एक्सिस पे ही उस पॉइंट का एग्जिस्ट करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को इस सेगमेंट में या यहाँ कहीं चुनते तो उस पार्टिकल का जो v बराबर r ओमेगा वेलोसिटी होता वो टिल्टेड होता, और चूंकि सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो v वेलोसिटी को किसी टिल्टेड वेलोसिटी के साथ इक्वलाइज करके हम जीरो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेट था किसी एक्सिस में ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और जैसे जैसे इस कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण बॉडी का ओमेगा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस y की पोजीशन भी चेंज होती जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर है कि ओमेगा डैश के इंक्रीज होने पर y डिक्रीज होता जाएगा, यानी ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे आता जाएगा। अगर एक ऑब्जर्वर इस डिस्क के ऊपर खड़ा होकर इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखेगा तो वो इसको अपने नजदीक सेंटर की ओर आता दिखाई देगा, लेकिन ट्रैजेक्टरी ग्राउंड फ्रेम से बनाई जाती है तो ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर को ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है और y एक्सिस में मूव करता हुआ दिख रहा है। So this is the path of instantaneous axis of rotation. Now the second part, the disk is moving with constant angular acceleration with zero initial velocity and it rotates counterclockwise with a constant angular velocity. So for solving the second part of the problem, this is the first part, and for solving the second part, again consider the starting movement. The c will be at the point O initially. After it will move with constant acceleration a. तो बिल्कुल पिछले केस की तरह अगर ये constant acceleration a से travel कर रहा है तो in time t it will travel a distance half a t square. This distance will be half a t square and this is the value of x coordinate of the center of mass as seen from ground. और बिल्कुल पिछले बार की तरह इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी t टाइम के बाद हाफ a t v बराबर u plus at से कैलकुलेट की जा सकती है। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर t टाइम will be v equal to 0 plus at. So velocity after time t of center of mass will be v equal to u plus at. And since the velocity of center of mass is at, it will be the velocity of every particle of the body. यानी इस बॉडी का कोई भी पार्टिकल vt स्पीड से आगे बढ़ेगा, then y डिस्टेंस पर एक ऐसे पार्टिकल को कंसीडर किया जा सकता है जो इतनी ही वेलोसिटी से बैकवर्ड ट्रेवल कर रहा है। बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की बैकवर्ड वेलोसिटी होगी y ओमेगा। और ग्राउंड फ्रेम से इस पार्टिकल को रेस्ट में रियलाइज करने के लिए जरूरी है कि बॉडी का at और y ओमेगा इक्वलाइज होता है। और सिमिलरली x की वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट करें देन इट विल बी 2x अपॉन a अंडर रूट, सो इट इज y ओमेगा एंड फाइनल आंसर विल बी a स्क्वायर 4x by a sorry a square 2x by a equal to y square omega square, and after cancelling this a we will get y square omega square is 2ax. So this is the trajectory in the second case. तो हमें कुछ करना नहीं है इस प्रॉब्लम में, हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि ग्राउंड फ्रेम से देखने पर बॉडी का वो पॉइंट, यूनिक पॉइंट जिसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से 0 है, वो किस किस पोजीशन में चेंज होता जा रहा है, क्योंकि वही हमारी बॉडी का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मीनिंग एक ऐसा पॉइंट जिस पर अगर ग्राउंड फ्रेम से बॉडी पर एक्सिस होता देन वो पर्टिकुलर पॉइंट रेस्ट में। तो हम अगर ऐसे ही पॉइंट को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाएं जो पहले से ही रेस्ट में है ग्राउंड फ्रेम से, देन
ऐसे पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्रिएट किया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट बाय द कांसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। थैंक यू।